नमस्कार। रोज की तरह हम हैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में। आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले त्योहारों के मौसम में अपनी खूबसूरती को चार चांद लगाने आज ही चले आइए डिवा ब्यूटी सैलून एंड नेल स्टूडियो। यहाँ आपको टॉप ब्रांड की ब्यूटी प्रोडक्ट्स तथा एक्सपर्ट ब्यूटिशियंस द्वारा केराटिन ट्रीटमेंट, परमानेंट स्ट्रेटनिंग, नेल एक्सटेंशन, हाइड्रा फेशियल, डायमंड रेडिएंट ग्लोब, बबल गम हैंड एंड फुट स्पा, ग्लास ग्लो फेशियल सहित और भी कई प्रकार की सर्विसेज दी जाएंगी, वो भी बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में। इसके अलावा विशेष पूजा ऑफर के तहत हम ग्लो फेशियल, गोल्ड फेशियल, O3+ फेशियल, हेयर स्पा, हेयर कटिंग, क्लीनअप, परमानेंट स्ट्रेटनिंग, हेयर स्पा, क्लीनअप, हेयर कलर, GK केराटिन ट्रीटमेंट की सेवा भी प्रदान कर रहे हैं। ये विशेष पूजा ऑफर 9 अक्टूबर तक वैलिड है, तो फिर देर क्यों, आज ही चले आइए डिवा ब्यूटी सैलून एंड नेल स्टूडियो, पद्मा टावर, सारदापल्ली, स्ट्रीट नंबर 6, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 8250808569 तथा 9832723757। पिछले कुछ समय से पश्चिम बर्धमान जिले में जिला टास्क फोर्स की तरफ से विभिन्न बाजारों में घूम घूम कर सब्जी, आलू, प्याज सहित रोजमर्रा की चीज़ों की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए निरीक्षण किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज जिला टास्क फोर्स के टीम ने बराकर और नियामतपुर बाज़ारों का दौरा किया और वहां पर होलसेल और रिटेल मार्केट में आलू, प्याज, सब्जी आदि की क्या कीमत है, इसकी जांच की। इस टीम में पश्चिम बर्धमान जिले के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इनमें एग्री मार्केटिंग मजिस्ट्रेट सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे, जिन्होंने बाज़ारों में होलसेल और रिटेल कीमतों का जायज़ा लिया। उन्होंने होलसेल और रिटेल चीज़ों की कीमतों में फ़र्क का निरीक्षण किया। আজকে আমাদের কর্মসূচি ছিল বোরাকর এবং নিয়ামতপুর বাজারে জিনিসপত্রের দাম, কাঁচা সবজি, আলু, পেঁয়াজ এগুলো কীরকম দাম যাচ্ছে, মানুষ কী দামে পাচ্ছে, হোলসেল কী রেট যাচ্ছে, এগুলো আমরা যাচাই করার জন্য এসেছি। এবং কিছু আমরা যাচাই করে দেখলাম যে মোটামুটি দাম নিম্নমুখী আছে। আলুর ক্ষেত্রে স্টেবল আছে, পেঁয়াজেরটা একটু আপ ডাউন হচ্ছে। তো এখন যেহেতু বাইরের রাজ্যে, আমাদের রাজ্যে পেঁয়াজটা নেই, বাইরের রাজ্য থেকে পেঁয়াজ আসছে, আর যেহেতু কাঁচা পেঁয়াজ এগুলোকে হোল্ডিং বেশি করা যায় না, তার ফলে পেঁয়াজের দামটা খুব বেশি এখন বেশি নেই। তো এটা এবার আমরা রিটেলটা এরপর দেখব, রিটেল দেখে আমরা হোলসেল রিটেলের ফারাকটা বোঝার চেষ্টা করব। অ্যাকর্ডিংলি আমরা ডিপার্টমেন্টে একটা রিপোর্ট করব, ডিএম সাহেবকে রিপোর্ট করব বাজারের সিচুয়েশান। এখন ওভারঅল হোলসেল যে সিচুয়েশান দেখছি এটা স্টেবল আছে, এটা আমরা বলতে পারি, খুব একটা ঊর্ধ্বমুখী নেই। তো এটাই আমাদের প্রাথমিক আমরা অবজারভেশন যেটা দেখলাম আর কি। আজকে আমরা এখন বোরাকট দেখছি, এরপরে আমরা নিয়ামতপুর বাজারটা দেখব। তারপরে আমাদের আগামী যেসব কর্মসূচি আমাদের জেলা শাসক মহাশয় যেরকম আমাদের নির্দেশ দেবেন সেই মতো আমরা করব। আমাদের সঙ্গে আমরা এখন হচ্ছে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আছেন, আমরা এগ্রি মার্কেটিং RMC আছি, আমাদের সঙ্গে লিগাল মেট্রোলজিও জয়েন করবে। তো এই চালাচ্ছি। ইবি আছে সঙ্গে, ইবি যারা নিয়মিত ইন্সপেকশন করে থাকেন আর কি। বাজারে আমরা দেখছি মোটামুটি যেটা দেখলাম স্টেবেলই আছে। কাঁচা সবজির অ্যারাইভাল যথেষ্টই বেড়েছে, যেটা নিয়ে সবচেয়ে বেশি প্যানিক ছিল ওটা বেড়েছে। এবং উইন্টার ভেজিটেবলসের অ্যারাইভালটা আরও 5-7 দিন পরে আরও বাড়বে। আর এর সঙ্গে আমাদের যেটা ব্যাপার, আলুটার উপর বেশি নজর দিচ্ছে। আমরা সুফল বাংলা থেকে আলু 25 টাকাতে আসানসোলে বিভিন্ন আউটলেটে বিক্রি করছি। আশা করছি আরও 10-12 দিনের মধ্যে যে কাঁচা আলু, যেটা আমাদের রাজ্যে হয়তো এখন কম উঠছে, কিন্তু এটা রাঁচি বা এই ঝাড়খণ্ড এরিয়া থেকে কাঁচা আলুর অ্যারাইভালটা বেড়ে যায়, তখন কিন্তু আলুর দামটা নিয়ে আমাদের খুব একটা ভাবতে হবে না। অটোমেটিক্যালি আলুর দাম তখন অনেকটাই কমে যাবে। তো এখন একটা ট্রানজিশন স্টেট চলছে, ব্যালেন্স, মানে পুরানো আলু আছে, কাঁচা আলু অল্প অল্প করে এন্ট্রি নিচ্ছে। এবার যখন কাঁচা আলুর এন্ট্রিটা বেশি আসবে, তখন কিন্তু দুটোরই দাম পর্যায়ক্রমে কমে যাবে। তো আমরা সেটা নজর রাখছি, আমরা হায়ার অথরিটিকে রিপোর্ট সেইভাবেই দিচ্ছি। সেটা আমাদের কাছে সেরকম ব্যাপার নেই, সেরকম হয়তো আপনারা অন্য জায়গা থেকে তথ্য নিতে পারেন কোনো রেস্ট্রিকশান আছে কি না। আমরা বেসিক্যালি এগ্রি মার্কেটিং এবং টাস্ক ফোর্সের যেটা কাজ, আমরা বাজারে প্রাইস, অ্যারাইভাল সিচুয়েশান কি আছে, আমরা সেটার উপরেই নজরদারি রাখছি। আমার নাম দিলীপ মণ্ডল, অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর এগ্রি মার্কেটিং, পশ্চিম বর্ধমান।
कल सृष्टिनगर के ओडिसी क्लब में सृष्टिनगर प्रीमियर लीग सीजन 3 के आयोजन के लिए खिलाड़ियों की नीलामी का आयोजन किया गया। इस मौके पर यहां सृष्टिनगर में रहने वाले निवासी और ओडिसी क्लब के सदस्य उपस्थित थे। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए ओडिसी क्लब के पदाधिकारी विनय चौधरी ने बताया कि इस बार सृष्टिनगर प्रीमियर लीग का यह तीसरा सीज़न है। इसमें पुरुषों की 9 टीमें और महिलाओं की 2 टीमें हिस्सा ले रही हैं। उन्होंने बताया कि कुल 150 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 12 जनवरी को फाइनल खेला जाएगा। उस दिन एक सेलिब्रिटी को बुलाया जाएगा। हालांकि अभी उन्होंने सेलिब्रिटी के नाम का खुलासा नहीं किया। उन्होंने कहा कि उचित समय पर सेलिब्रिटी के नाम की घोषणा की जाएगी। हैं जो डिसाइड करती हैं सृष्टिनगर में, और सब फैमिली से हम चाहते हैं कोई ना कोई पार्टिसिपेशन हो। आज क्रिकेट है कि पिकल बॉल है कि बैडमिंटन है, कोई ना कोई स्पोर्ट में ज़रूर कोई ना कोई उनका मेंबर पार्ट लेता है या पार्ट लेना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि इतना बड़ा सोसाइटी का एडवांटेज हो, हमारे पास इतना बड़ा क्लब है जिसमें सब खेल सकते हैं। स्विमिंग के सीज़न में स्विमिंग होते हैं, रोज़ अलग अलग एक्टिविटीज़ होते हैं। तो SPL एक और तरीका है इसी तरह क्रिकेट के साथ इन्वॉल्व होने का। सो वी विश एवरीवन द बेस्ट एंड मोर पार्टिसिपेंट्स हर साल हमारे साथ जुड़े इससे। इस बार कौन सा सीजन हो रहा है और क्या क्या कैटेगरी है यहाँ पे? इस बार हम लोग SPL का सीज़न 3 मना रहे हैं और इसी का ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है अभी, और आज इसका ऑक्शन है। और हमारे 2 सीज़न पहले हो चुके हैं और इस सीज़न को हम और भी पहले से बेहतरीन करेंगे। तो कितने टीम यहाँ पे हिस्सा ले रहे हैं? ये SPL में हमारी 9 टीमें जेंट्स की हैं और 2 टीमें लेडीज़ की, और इसमें तकरीबन 150 खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो फाइनल के दिन कोई चमक, कोई सेलिब्रिटी? ऑफकोर्स हर साल की तरह एक सेलिब्रिटी को बुलाएंगे हम, जो कि अपना 12 जनवरी को जिसका फाइनल्स है उसी दिन हमारा क्लोजिंग सेरेमनी होगा और उसी में सेलिब्रिटी इन्वाइटेड होंगे। हम उसका नाम आउट कर देंगे आपके इन्वाइट्स में। तो आप लोग जो SPL जो टूर्नामेंट होता है यहाँ पर, तो देखा जा रहा है यहाँ पर जितने भी यहाँ ग्राउंड का जो मेंबर है वही सब पार्टिसिपेट करते हैं। तो अलग इसको छोड़ के भी कुछ सोच नहीं, ये जनरली हमारा जो मोटिवेशन है ओडिसी क्लब के मेंबर्स के थ्रू ही मिला हमको, और हम चाहते हैं कि हमारे मेंबर्स यहाँ पे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें। यहाँ पे एक हैप्पी लिविंग का एक पैगाम सारी जनता को दें ताकि लोग यहाँ सृष्टिनगर में आके रहना पसंद करें। साहिल जी उसके बारे में थोड़ा डिटेल में आपको बताएंगे कि किस कॉन्सेप्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं। साहिल जी इसके बारे में क्या? अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। अपने सपनों के आशियाने को पाने के लिए चले आइए आसनसोल के आड़ाडंगाल इलाके में रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट त्रिनेत्र अपार्टमेंट में। यहाँ पर आपको हर आधुनिक सुविधा जैसे लिफ्ट, पार्किंग, 24 आवर्स वाटर सप्लाई सहित तमाम वो सुविधाएं मिलेंगी जिसका हर इंसान सपना देखता है, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। यहाँ आपको विभिन्न बैंकों से होम लोन की भी सुविधा मिलेगी। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए त्रिनेत्रा अपार्टमेंट, आड़ाडंगाल रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट। मोबाइल नंबर 9832977802, 9832125354 और 9332582862। आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को 4 चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में खरीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, GT रोड ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन
जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। काजी नजरुल विश्वविद्यालय के साहित्यिक संगठन जहान अदब उर्दू साहित्यिक सोसाइटी की पहली साहित्यिक बैठक काजी नजरुल विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग में आयोजित की गई। इस साहित्यिक सत्र में काजी नजरुल विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग की प्रोफेसर और विश्व साहित्य की महासचिव डॉक्टर सोफिया महमूद ने इस साहित्यिक संस्था के उद्देश्य और लक्ष्य पर प्रकाश डालते हुए सभी सदस्यों का तहे दिल से स्वागत किया। इस बैठक में डॉक्टर फारूक आजम को अध्यक्ष चुना गया। बाद में इस साहित्यिक बैठक में जहान अदब के सदस्यों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। इस कार्यक्रम में शामिल उर्दू विभाग के प्रोफेसर और विश्व साहित्य के प्रमुख डॉक्टर मोहम्मद फारूक आजम ने अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि दर्शकों और प्रतिभागियों को अच्छी सलाह दी और साहित्य की दुनिया के लक्ष्यों और उद्देश्यों का वर्णन करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य वर्तमान और पूर्व को प्रस्तुत करना है। खुशी हुई इस बात पे कि आज जहान अदब की पहली नशिस्त मुनक़िद की गई और इस जहान अदब की पहली नशिस्त में जहान अदब के अरकान मौजूद हैं, शुरा भी मौजूद हैं और इतनी अच्छी अच्छी तख्लीक पेश की गई। किसी ने अफसाना पेश किया, किसी ने गज़ल पेश की, किसी ने नज़्म पेश की, किसी ने अपना मक़ाला पेश किया। जाहिर सी बात है कि जो शुरा हैं, जो मेंबरान हमारे हैं, जो अरकान हैं, उनके दिल में भी ख्वाहिश हो रही होगी कि काश हम भी कुछ लिख पाते, हम भी कुछ लिख पाते। तो ये जो जज्बा है, ये जो सोच है, ये जो फिक्र है, यही आपको लिखने पर मजबूर है। एक वक्त ऐसा आएगा कि आप भी कुछ लिखेंगे, आपके अंदर जो ज़ौक़ शौक़ पैदा होगा, आपके अंदर जो दिलचस्पी पैदा होगी, कुछ न कुछ तहरीर करने की, कुछ न कुछ लिखने की। तहरीर करना, तख्लीक करना, ये क्या है? अपने एहसासात और जज्बात का इजहार करना है। फीलिंग्स हमारे अंदर मौजूद है, एहसासात और जज्बात हमारे अंदर मौजूद है, वाक़यात मौजूद है, कहानियां मौजूद हैं, हम उसको बयान नहीं कर सकते। क्यों नहीं बयान कर सकते? जबान नहीं है हमारे पास, जबान से मुराद अल्फाज नहीं है हमारे पास, लफ्जों का जखीरा नहीं है हमारे पास। उस फन से हम वाकिफ नहीं है कि कैसे हम पेश करेंगे अपनी फीलिंग्स को, अपने एहसासात को, अपने जज्बात को हम कैसे पेश करेंगे। फन से वाकिफ नहीं है, साथ ही साथ अल्फाज से वाकिफ नहीं है, लफ्जों का जखीरा हमारे पास नहीं है। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि जब भी हम कुछ नया नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के ज़रिए और हमारे पोर्टल के ज़रिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसानसोल पौरसभा শহরকে সুন্দর ও নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना, थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা করি যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, धूम्रपान त्याग करब, शहर के दूषण मुक्त करते गाछ लगाबो और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।